Hello everyone. So in my last video, I have discussed about how to create a company on Tally Prime. So in this video, we will discuss how to create ledgers on Tally Prime. So this is in continuation from the last video. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं. सो हेयर इज़ द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमें एक ए ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में डिटेल्स गिवन है, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट इज़ गिवन, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की डिटेल्स गिवन है. सो नाउ वी विल एंटर द लेजर्स in Tally Prime and then we will check the balance sheet through reports. So लेट्स ओपन टैली प्राइम. तो मैंने ऑलरेडी इसमें ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी क्रिएट कर ली है, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एंटर लेजर्स. तो लेजर्स एंटर करने के लिए सबसे पहले वी विल सेलेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन वी विल क्रिएट लेजर्स एंड नाउ यू सी दिस स्क्रीन. तो इस स्क्रीन का क्या मतलब है? स्क्रीन में इफ़ यू सी केयरफुली, हेयर इज मेंशन लिस्ट ऑफ लेजर्स. लिस्ट ऑफ लेजर्स, ये वो लेजर्स हैं जो टैली में ऑलरेडी हैं. सो हेयर यू कैन सी 28 ग्रुप्स एंड 2 लेजर्स. इट मीन्स कि 28 ग्रुप्स और 2 लेजर्स ऑलरेडी टैली में होते हैं. बट नाउ वी विल क्रिएट आर लेजर्स जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हैं. सो हेयर आई विल सेलेक्ट मल्टी मास्टर्स. मल्टी मास्टर्स का पर्पज़ ये होता है दैट वी कैन क्रिएट मोस्ट ऑफ द लेजर्स, n number of ledgers in one time. Otherwise we need to create it individually, which will take a lot of time. So in order to save time, we will select multi masters. In multi masters we will select multi create. So now the screen appears and here it is written all items. So I will press enter. So now as per the question, first ledger account, let's see the question. Ledger में सबसे पहले हमें given है capital. So let's enter capital. We will write capital here. Then now here you can see a list of group. तो हमें यहाँ पे बहुत carefully select करना है that अगर हम capital ledger बना रहे हैं तो capital ledger हम किसके अंडर रिकॉर्ड करेंगे, कौन से ग्रुप के अंदर उसको लिस्ट करेंगे. सो कैपिटल आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर. ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 15 लाख. So we have written 15 lakh. Then we will press enter. Credit balance, yes. Okay. Next we have general reserve. General reserve लिखा हमने. Then general reserve कौन से head के अंदर, कौन से group के अंदर आएगा? Here is the group reserve and surplus. So balance is 5 lakh. So we will write 5 lakh here. Again credit balance, enter. Then we have secured loans. Secured loans, then we will select the group secured loan. Balance is 2 lakh. जब हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली उसको सेलेक्ट करना है, बिकॉज वी नीड दैट बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू ऑपरेट ऑन टैली. अदरवाइज इट कैन टेक द रॉन्ग एंट्रीज. देन वी हैव डिबेंचर्स and bracket में it is written unsecured loans. So enter, then unsecured loans, and the balance is 2,50,000. Credit balance, yes. Then we have bills payable. अब bills payable को हम किस में लिखते हैं? We write it under current liabilities. Okay. Then the bills payable balance is 70,000. So we will write 70,000. Then again credit, yes. Then we have salaries outstanding. Again current liability. So we will select current liability. Balance is 25,000. Credit balance, yes. Then we have provision for tax. Provision for tax. इसको हम लिखेंगे provisions में. Then balance is 33,000. Credit balance, yes. Okay, let's see the question once. Provision, capital हमने लिख लिया, general reserve लिख लिया, profit and loss अभी हमने नहीं लिखा है, उसको हम लास्ट में एंटर करेंगे. उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. Then we have entered secured loan, we have entered debentures, unsecured, we have left creditors.
क्रेडिटर्स को भी हम लास्ट में एंटर करेंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी. देन वी हैव एंटर बिल्स पेबल, salaries outstanding, provision for tax and rent outstanding. So provision for tax, then we will write rent outstanding. तो rent outstanding हमारा किस में आएगा? It will come under current liabilities and the balance given is 37,000. So we will write 37,000. Enter. Yes. Then let's go to the question again. अब क्वेश्चन में हमें और क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, देन बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स. सो जो ये डेटर्स हमें गिवन है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, P&L एंड कैश, इन सब की जो एंट्री है हम वो लास्ट में करते हैं और उसका एक रीज़न है. उसको अभी नहीं करना, उसको हम पहले बाकी सारे लेजर्स हम एंटर कर लेंगे, उसके बाद वी विल एंटर दीज थिंग्स. ओके, सो लेट्स एंटर लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग किस में आएगा? फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स एंड द बैलेंस इज 10 लाख. सो वी विल राइट 10 लाख. देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी. Plant and machinery, again fixed asset and the balance is 8 lakh. Okay, then we have furniture. Furniture में हमने क्या लिखा है? It is again fixed asset and the balance is 1,70,000. 1,70,000. Debit balance, yes. आफ्टर फर्नीचर वी हैव इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के अंडर देयर इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द बैलेंस इज 80,000. सो वी विल राइट 80,000. ओके, लाइक दिस वी विल एंटर ऑल अदर लेजर्स. ओके, सो इन्वेस्टमेंट हमने एंटर कर दिया है. देन कैश इन हैंड, इसको अभी हम नहीं एंटर करेंगे. देन वी हैव बैंक अकाउंट्स. लेट्स गो टू टैली. सो वी हैव एक्सिस बैंक अकाउंट, जिसको हम लिखेंगे बैंक अकाउंट्स के अंडर, एंड वी हैव द बैलेंस 2,25,000. डेबिट बैलेंस, यस. वी हैव SBI, अगेन इट इज अ बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस इज 1,75,000. So debit balance, yes. Then we have prepaid expenses. So prepaid expenses हमारा कहाँ पे आता है? Prepaid expenses is a current asset. तो current asset and the balance is 5,000. Enter. Then we have bills receivable. Receivables. Again current asset and the balance is 85,000. Enter. Debit balance. Then now, so let's go to the question now. So अब यहाँ पे liability side पे we have entered everything except the P&L account balance, and on asset side except the P&L account and the creditors balance. And on the asset side we have mentioned everything except cash in hand and stock in hand and the debtors. So अब यहाँ पे जो हमारा रीज़न है क्रेडिटर्स और डेटर्स को एंड में रिकॉर्ड करने का, वो ये है क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल डेटर्स की और क्रेडिटर्स की डिटेल्स गिवन है. सो डेटर्स जो यहाँ पे हमें 2 लाख दिख रहे हैं, वो 2 लाख इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज उसका बाइफिकेशन इज गिवन. सो वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल द डेटर्स एज पर द अमाउंट गिवन. And for creditors also bifurcation is given, so we will record all the creditors as per the bifurcation given, as per the balances given. So let's go to the prime window. So first we will record the creditors. First creditor is Pooja. So Pooja we will record it under sundry creditors. Creditors में Pooja का balance is given 45,000. Okay, it is credit balance, yes. Then enter. Then after this Akash. Next creditor is Akash, sundry creditor.
balance is given 65,000. Credit balance, yes. Enter, enter. Then we have Naveen. Naveen, again sundry creditor. Balance is given 20,000. So credit balance, yes. Enter, enter. So let's go to the question now. अब यहाँ पे हमने तीनों क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर लिए. Now we need to record the debtors also. तो हम debtors को रिकॉर्ड करेंगे as per the details given. So सबसे पहले है राहुल, then सीमा, then मंगल, then रवि. So let's go to the prime window. तो सबसे पहले debtor में है राहुल. राहुल sundry debtors. And the balance is given 30,000. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000. Debit balance, yes. Enter, enter. Then we have Seema. Sundry debtor. Then we have 40,000. Balance is 40,000. Debtor, yes. Enter, enter. Then we have Mangal. Again, it is a sundry debtor. Then the balance is given 50,000. So we will write 50,000. Debit balance, yes. Enter, enter. Then in the last we have Ravi. Again he is a sundry debtor. तो हमने सारे डेटर्स को सन्ड्री डेटर ग्रुप में इंक्लूड करा है और सारे क्रेडिटर्स को सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में. So for Ravi the balance is given 80,000. So we will record 80,000. Enter, enter, enter. So now what will we do? So here as you can see there are all the ledgers we have created. Then we will now press enter and yes. So अब हमारे पास सारे ledgers की लिस्ट आ गई and we have saved it. Now अब हमें क्या करना था? अब हमें कैश इन हैंड एंड P&L अकाउंट इन दोनों के बैलेंसेस को अपडेट करना था. हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो दो लेजर्स होते हैं ये ऑलरेडी टैली में होते हैं तो हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, हम इनको सिर्फ अपडेट कर सकते हैं. सो लेट्स गो टू मल्टी मास्टर्स अगेन. नाउ हियर वी विल सिलेक्ट मल्टी ऑल्टर. मल्टी ऑल्टर में हम जाएंगे कैश इन हैंड में. एंटर. अब यहाँ पे कैश इज ऑलरेडी देयर, कैश इन हैंड के ग्रुप में आएगा ये. एंड ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है हमें कैश का? सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें कैश का बैलेंस कितना गिवन है? 30,000. सो वी विल राइट 30,000 हियर. डेबिट बैलेंस, यस. ओके. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सेव इट फर्स्ट. इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं दिख रहा है? लेट्स सर्च इट. प्रॉफिट एंड लॉस, नो. ओके ओके, प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ऑल राइट. ओके, तो हम यहाँ जाएंगे. यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is given. ओके, तो हम क्या करेंगे? अब इसको सर्च करते हैं. ओके, लेट्स सर्च इट. सो P&L अकाउंट के बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम बिल्कुल एग्जिट करके मेन विंडो पे आ गए हैं. एंड देन नाउ हेयर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली वी विल सेलेक्ट ऑल्टर. देन फ्रॉम ऑल्टर वी विल सेलेक्ट लेजर. अब लेजर में यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे. ओके, दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड सिंगल लेजर्स. हम सिंगल लेजर्स की एंट्री ऐसे करते हैं. सो नाउ एंटर 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 एंड द बैलेंस विच इज गिवन टू अस. लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें P&L का बैलेंस कितना गिवन है? इट इज गिवन 3 लाख. सो लेट्स एंटर 3 लाख हियर. देन वी हैव क्रेडिट बैलेंस, yes. We need to save it. Yes. So we have entered all the ledgers except for the one which is stock in hand. So let's see. जब हम अभी हम stock in hand की एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी बैलेंसेस थे, जितने भी ledgers थे, इंक्लूडिंग द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, हमने एंटर कर दिए. तो लेट्स सी कि इस केस में अभी हमारे रिपोर्ट्स कैसी दिखती हैं. रिपोर्ट्स मीन्स दैट हमारी बैलेंस शीट कैसी होती है. सो हम बैलेंस शीट पे कैसे गए? वी हैव एग्जिटेड टू द मेन विंडो गेटवे ऑफ टैली. नाउ इन रिपोर्ट सेक्शन वी विल सेलेक्ट बैलेंस शीट. नाउ यू कैन सी हेयर द बैलेंस शीट इज शोन लाइक दिस. यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट
बना दी है टैली ने जो आपको विजिबल है। अगर आपको बहुत डिटेल में देखनी है बैलेंस शीट तो आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, डिटेल्ड। सो दिस इज योर डिटेल्ड बैलेंस शीट। ओके, सो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं बिकॉज अभी हमने यहाँ पे स्टॉक की एंट्री नहीं की है। तो जब हम स्टॉक की एंट्री करेंगे तो ये बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी एंटर लेजर्स इन टैली। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ फॉर एंटरिंग द स्टॉक, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। So that is how we enter ledgers in Tally. In next video, we will learn about how we enter stock details. Thank you so much.